Hello students, welcome back. In this video, what we are going to do is one and many one function. Basically, classification of function. Functions are classified in so many ways, and one of them is one function or many one function. कोई फंक्शन 1 to 1 है या many to 1 है, that is one classification of functions. This is also called injective function. It is also called injection. Yes, it is called injection. Number of injections या injection है या नहीं है function. And this is called not injective or simply not injection. So there are two classification कि function will be either 1 to 1 or many to 1. The idea where it started is कि when we defined the function, जब हमने function define किया था तो I said कि भाई every input will have a unique output, but every output will have unique input. ऐसा कुछ नहीं था. एक x सिर्फ एक ही y से कनेक्ट हो सकता है, but one y can be connected to many x. तो y गुस्सा हो गया, बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, हमें भी सिंगल सिंगल ही करना है. तो सिंगल सिंगल करना है तो फंक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया था. तो व्हाट वी सेड कि x will be uniquely connected. Now, if y is also uniquely connected, then it is basically 1 to 1. 1 to 1, and we call it 1 to 1 function or simply 1 function. But if it is not the case, then we call it many to 1 function. 1 to 1 or many to 1. Many to 1 में it's not compulsory कि हर एक नंबर many to 1 ही हो. There is exactly one minimum case is required. कम से कम एक फंक्शन ऐसा हो, एक ऐसा y का वैल्यू हो जो कि दो x से कनेक्टेड हो. So this overall is called many to one function. 1 के लिए every element of x is uniquely connected to y and every element of y नहीं, कोडों में नहीं, every एलिमेंट ऑफ रेंज कनेक्टेड वाले शुड बी यूनिकली कनेक्टेड टू y. मतलब एक x और एक y एक ही एक से कनेक्टेड हो, दो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. दैट इज एवरी कनेक्टेड y दैट इज कॉल्ड इमेज must have only one, what we call it, pre-image. Have only one pre-image. एक pre-image का एक ही image होना चाहिए, वो तो clear cut बात है, just by the definition of function. But now every pre-image should also have exactly one pre-image, so that is called, ये तो देखो function ही नहीं है. Now this is called 1 function. Otherwise it will be called for 1 function. For example this. Now if I say, वैसे तुमने देख लिया बहुत सारे एग्जाम्पल. Something like this, then this would be a many to 1 function or simply called many 1 function. The idea is कि आपको वेन डायग्राम बहुत रेयर केस में दिखेगा क्वेश्चंस में. यूजुअली व्हाट विल हैव इज एक्चुअली अ फंक्शन कि ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू साइन एक्स या y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 या y इक्वल टू लॉग एक्स. बोलो ये 1 है या मिनी 1 है. So one idea for this is
One idea for this is looking at the graph. Like in function, graphically, how we decide whether a graph, whether a relation between x and y graphically a function or not. What we do is we do the vertical line test. Vertical line test matlab every vertical line within the domain must intersect the curve at only one point, और आई विल से एग्जैक्टली वन पॉइंट, न वन से कम न वन से ज्यादा, एग्जैक्टली वन पॉइंट विद इन द कोडोमेन. So that was the check for function. What about the one function? One function के लिए स्टोरी है कि every horizontal line obviously within codomain must intersect the curve at most one point for one function. At most one बोलने का मतलब या तो वन या जीरो, nothing else. So let's do one thing. Suppose ये एक ग्राफ है, बोलो ये फंक्शन है या नहीं. So actually this is not a function because using vertical line test I can see that there is one line at least which is intersecting the curve at more than one point. So it is not a function. Now we have this which is very clear is a function because every vertical line you draw will cut the curve at exactly one point. Then we have x cube. That is again a function because every vertical line is intersecting the curve at exactly one point. अब वन मेनी वन की बात करते हैं. अब ये तो चलो फंक्शन ही नहीं है, इसको हटा दिया. अब इन दोनों में कौन सा वन है कौन सा मेनी वन, ग्राफिकली हाउ डू वी आइडेंटिफाई? तो सी every horizontal line must intersect the curve one at maximum one point. देखो ये कट कर रहा है maximum one point पे, नहीं, there are so many lines intersecting the curve at more than one point, so this is not one but many one function. In this case you see any line that you draw horizontal is intersecting the curve at exactly one point, so this is one function. Let's take one more function. Anyone can tell me what is this function? This is y equals to a power x for a greater than 1, or let me say e power x. Now is this a function? Yes, because every vertical line will intersect the curve at exactly one point. Is it a one function or many one? Horizontal lines are intersecting the curve at one point or 0 point. मतलब at most one point. To yes, it is a one function. One to one function, many to one function, one to one function. Now I am going to connect in between a video in which I will tell you all those 30 graphs कि वो one है या many one. So hello students. In this short video, I am going to show you standard graphs and we are going to understand whether these are one or many one. As we already know कि कोई भी ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ने अगर एक से ज्यादा बार कट किया तो वो many one होगा, अदरवाइज one होगा. So if you see here, the graph is y equal to 2. ये रेड लाइन आपको दिख रही है. अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं भी तो वो उसको कट नहीं करेगा, लेकिन अगर x इक्वल टू 2 पे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर, सॉरी y इक्वल टू 2 पे, तो वो उसको इनफिनिट बार कट करेगा, एंड सो इट इज अ मेनी वन फंक्शन. सेकंड इज दिस ग्राफ एंड दिस इज y इक्वल टू x. y इक्वल टू x में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एवरी टाइम इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट वन एंड ओनली वन टाइम, सो दिस इज अ वन फंक्शन. इधर आते हैं, ये भी एक लीनियर फंक्शन है y इक्वल टू mx प्लस c जैसा. अगेन व्हाट वी आर गेटिंग इज अ वन फंक्शन, क्योंकि कोई भी लाइन बनाओगे एक बार ही कट करेगा. अगेन लीनियर फंक्शन.
डाउनवर्ड लीनियर फंक्शन, स्टिल अ 1 1 फंक्शन, क्योंकि हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 1 और ओनली 1 टाइम ही कट करेगा. नाउ दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो 2 बार कट करेगा. इट विल इंटरसेक्ट ट्वाइस 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 ट्वाइस. Here it is intersecting once, here intersecting not at all. But जैसा मैंने बोला, एक भी लाइन ने अगर एक से ज्यादा बार कट किया तो that will be many one. So this is your many one function. Next की बात करते हैं. नेक्स्ट ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, और रूट एक्स का ग्राफ है तो इफ यू सी, तो ये कोई भी लाइन बनाओगे तो मैक्सिमम एक बार ही कट करेगा. मैक्सिमम क्यों बोला इस बार मैंने, क्योंकि अगर कोई लाइन कट नहीं करता है दैट्स ओके, बट अगर कट करता है तो मैक्सिमम एक बार ही कट करना चाहिए. सो दिस इज अगेन अ 1 1 फंक्शन. एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा, जिसमें a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला हुआ, यहाँ a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला हुआ. दोनों ही ग्राफ, थिंक ऑफ इट 1 1 और मिनी 1. एक्चुअली बोथ आर मिनी 1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसी आपको मिल जाएंगी जो इस ग्राफ को 2 2 बार कट करेंगी. नाउ दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब. y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, एंड अगेन एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस एट वन एंड ओनली वन पॉइंट. नाउ वन में से कि सर ये जो एक्स एक्सिस है वो तो बहुत बार कट कर रहे हैं. ये जो एक्स एक्सिस है दैट इज इंटरसेक्टिंग एट मेनी पॉइंट्स इन दिस रेंज. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. एक्चुअली में ऐसा नहीं है. यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करता है, बट एक्चुअली में वो कट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे करते हैं. क्योंकि जैसे हम ओरिजिन से आगे बढ़ेंगे, एक्स का वैल्यू 0.1 लोगे तो वाई का वैल्यू 0 नहीं रहेगा. इट विल बी 0.0001 या 0.001 हो जाएगा. इसका मतलब ग्राफ ऊपर चला गया है. ये ग्राफ में ऐसा ड्रॉ करने में दिखता है, अदरवाइज दिस इज अ कंप्लीटली 1 1 फंक्शन. दिस इज अ नॉर्मल क्यूबिक, जनरल क्यूबिक, जिसके 3 आर्म्स हैं, 1 2 and 3. पहला अप, फिर डाउन, फिर अप. Now this is a many one function because there are lines which are intersecting the curve at 3 point also, at 1 point also, at 2 point also. Can you mark them? देखना, ये 1 point पे कट करता है, ये 2 point पे कट किया, यहाँ और यहाँ. ये लाइन 3 बार में कट करेंगे, ये वाली लाइन 2 बार कट किया, और ये वाली लाइन ने 1 बार कट किया. तो ultimately we see कि there are some lines which are intersecting the curve at more than one point, and so this is a many one function. Same story goes here also. Now you cannot just say कि कोई भी cubic polynomial होगा तो वो many one ही होगा. नहीं, it is not true. अभी हमने देखा था स्टैंडर्ड सिर्फ x क्यूब का ग्राफ था तो ऐसा बना था, वो 1 1 था ना. ये जनरल क्यूबिक है तो इसमें 3 आर्म्स हैं तो मेनी वन दिख रहा है. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसा हो क्यूबिक का. तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि क्यूबिक ग्राफ मेनी वन ही होगा. इट कुड बी 1 1 एंड इट कुड बी मेनी वन. और कैसे पता चलेगा, उसके लिए अपने पास 2-3 तरीके हैं जो 1 1 मेनी वन में एनालिटिकली मैंने आपको बताए हुए. Now this is y equal to x power 1 by 3, that is cube root of x. Again you see this is a 1 1 function. ये y equal to mod x का ग्राफ है, मेनी वन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आप देखोगे तो there are many lines above x axis which are intersecting the curve at 2 points. Now this is signum function. Signum function भी बोलते हैं, signum function भी बोलते हैं. Again you see this is many one function. Greatest integer function, many one function. y equal to 1 by x. y equal to 1 by x में देखना, एक भी लाइन ऐसा नहीं मिलेगा जो 2 बार कट करे, 3 बार कट करे. जो भी लाइन है या तो कट नहीं करेगा या फिर 2 बार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कट करेगा. एंड रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइंस ओनली. ये कौन सा ग्राफ है? सो दिस इज y equal to log x का ग्राफ on the base 2. You see this is completely 1 1 function. ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ है, log x टू द बेस e, वापस से 1 1 हुआ. ये log x का ग्राफ है टू द बेस 1 by 2. जब बेस 1 से छोटा होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड हो जाता है. ये y इक्वल टू साइन x है, क्लियरली मेनी वन फंक्शन.
एक्चुअली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे मेनी वन होते हैं. साइन एक्स मेनी वन, इफ यू सी कॉस एक्स मेनी वन, you see tan x again many one, cot x many one, sec x many one, cosec x many one. तो सारे trigonometric function many one ही होते. Now this is sin inverse x. Inverse trigonometric function में sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, sec inverse and cosec inverse. ये सारे के सारे functions वन वन होते हैं. वैसे भी आपको बाद में बताया जाएगा कि जो भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे फंक्शन वन वन और ऑन टू होते हैं. तो अगर ऐसा नहीं है तो उनको थोड़ा मॉडिफाई करके उसको वन वन ऑन टू बनाते हैं एंड देन वी फाइंड द इनवर्स. तो ये इनवर्स फंक्शन ही है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स. ये सारे के सारे वन वन ही होंगे. लेट्स सी साइन इनवर्स वन वन. कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे एक से ज्यादा बार कट नहीं करेगा. कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, एंड दैट्स इट. थैंक यू. So now you have seen कि how do we identify graphically कि कोई function one one है या many one है if we have the graph. But if we don't have the graph, then what we do? So let's go for analytical method for one one and many one identification. एकदम simple सा idea है. We are going to use a contradiction method. Contradiction method में what we do is we assume a function is many to one, and if it is a many one function तो कम से कम एक केस तो ऐसा होगा ही होगा जिसमें दो पॉइंट पे वैल्यू सेम आती हो. लेट मी से ये अल्फा है, ये बीटा है, तो आई कैन से एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा. यूजुअली इट इज रिटन एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, बट x1 x2 लिखने में इट टेक्स मोर टाइम देन अल्फा बीटा, तो आई प्रेफर अल्फा बीटा. नाउ इट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू. ना जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देयर आर टू केसेस पॉसिबल. One case will be alpha equal to beta is the only possibility, that is only solution. And second case will be alpha equal to beta के साथ there are some more solution. When you start with contradiction method कि I assume that function many one है और function many one है तो कम से कम दो नंबर तो ऐसे होने चाहिए जिसके लिए function का वैल्यू सेम आता. So we started with f alpha equal to f beta. इसको सॉल्व करने पे if I see that alpha equal to beta is the only possibility, मतलब ये दोनों तो सेम हो गए, which contradicts our assumption. हमने तो अल्फा बीटा अलग अलग माना था लेकिन ये तो अल्फा बीटा सेम आ गए. इसका मतलब the function is one function. हाँ, अल्फा का वैल्यू बीटा के साथ कुछ और भी आया then that is a many one function. Now let me take one example तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एक लेते हैं y इक्वल टू x और एक लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. This is exactly what, these are two different questions. Now what I'm going to do is exactly what you are supposed to do. मतलब ये काम बहुत ही आसान है, nothing very difficult, nothing बहुत typical difficult कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा. Idea is f alpha, ये f ऑफ x है x, तो f ऑफ अल्फा इक्वल टू f ऑफ बीटा से स्टार्ट करोगे. f अल्फा इज अल्फा, f बीटा इज बीटा. What we have is alpha equal to beta is the only solution, and so the function is one function. और ग्राफ में भी हमने देखा था आइडेंटिटी फंक्शन है y equal to x and that was 1. Here if I say f alpha equal to f beta, so fx is x square, f alpha is alpha square. Some people may be thinking कि सर ने लिखा है y और बोल रहे हैं fx. Actually सेम है, फंक्शन y equal to fx ही होता है. तो fx अगर x स्क्वायर है तो f बीटा बीटा स्क्वायर होगा. सॉल्व करेंगे तो अल्फा विल बी बीटा
एंड साथ में समथिंग एल्स ऑल्सो, एंड सो दिस इज a many one function. We already know square function is many one because this line is intersecting the curve at more than one point. Y equal to x is a 1 1 function because every horizontal line is intersecting the curve at most one point. In this case exactly one point. एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अल्फा इक्वल टू बीटा तो हर हाल में आना ही है. Whatever case you take, either 1 1 or many one or whatever, alpha equal to beta is always will be there. अगर अल्फा इक्वल टू बीटा वाला केस नहीं आया, अल्फा इक्वल टू सिर्फ बीटा प्लस वन आ गया, मीन्स यू हैव मेड सम मिस्टेक. अल्फा इक्वल टू बीटा तो आना ही है. दैट इज वेरी मच सिंपल एंड वेरी क्लियर कट. सो ऑलवेज रिमेंबर, या तो अल्फा इक्वल टू बीटा इज द ओनली सोल्यूशन या फिर अल्फा इक्वल टू बीटा के साथ कुछ और भी आएगा. अब ये दोनों तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हो गए थे. लेट्स डू टू मोर एग्जांपल. लेट्स से y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. व्हाट इज एफ अल्फा, व्हाट इज एफ बीटा? तो एफ अल्फा विल बी 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 4 एंड एफ बीटा विल बी 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस 4. माइनस फोर कैंसल हो गया. ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मैंने एक साथ कर दिया और अल्फा बीटा एक साथ कर दिया. नाउ दिस इज 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 3 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा. ना अल्फा माइनस बीटा जो है वो कैंसिल हो गया. Wrong, you cannot cancel that. You have to consider a case कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0. या तो अल्फा माइनस बीटा 0 हो जाए तो all good. If not, then we can cancel and you get 2 alpha plus 2 beta is minus 3. तो minus beta minus 3 by 2. Minus beta minus 3 by 2. So what we are getting is alpha equal to beta तो आया, साथ में minus beta minus 3 by 2 भी आया. And so this is a many one function. Let's do one more question. Let's say y equal to x cube plus 3x minus 4. ट्राई योरसेल्फ. 1 1 होगा या मेनी वन होगा. ग्राफ में मैंने बताया आपको कि क्यूबिक फंक्शन है, 1 1 भी हो सकता है और मेनी वन भी हो सकता है. सो एफ अल्फा विल बी अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा माइनस 4 बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा माइनस 4. माइनस 4 कैंसल, मिला अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज माइनस 3 अल्फा माइनस बीटा. 3 डिग्री अलग किया, 1 डिग्री अलग किया, जस्ट लाइक हियर 2 डिग्री एक साथ, 1 डिग्री एक साथ. दिस इज अल्फा माइनस बीटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट इज माइनस 3 अल्फा माइनस बीटा. तो या तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा या फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0. अल्फा इक्वल टू बीटा यहां से आ गया और अल्फा में क्वाड्रेटिक है, अल्फा की 2 वैल्यूज यहां से भी आएंगे. सो वी आर गेटिंग अल्फा इक्वल्स टू अल्फा 1 एंड अल्फा 2. सो व्हाट इज द आंसर? देयर आर 3 वैल्यूज एंड सो इट इज अ मेनी वन फंक्शन. ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे. नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट कंपल्सरी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 रूट का भी केस होता है, नॉन रियल रूट होते हैं. तो वी हैव टू चेक इसके रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या सिमिलर होंगे. एंड दैट वी डू बाय फाइंडिंग डी. और डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4, ए इज 1 and c is beta square plus 3. What we get is beta square minus 4 beta square is minus 3 beta square minus 12 and it is always negative.
बीटा स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, -3 बीटा स्क्वायर है नेगेटिव होगा, एंड सो देयर इज नो रूट. So what we see that alpha equal to beta is the only solution, and so the function is 1 1. ये फंक्शन 1 1 हो गया. ये अगर +3 की जगह -3 होता तो मेनी 1 हो सकता. बट इन दिस केस यू कैनॉट डायरेक्टली से कि क्वाड्रेटिक है 2 रूट आएगा. नो, इट मे बी पॉसिबल कि उसका कोई भी रूट नहीं हो. तो यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन. देखो, एक मैंने 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 2 डिग्री का जनरल, एक 3 डिग्री का जनरल, ऐसे मैंने पॉलिनोमियल्स में ट्राई किया. It's not limited to polynomials only. There are so many questions, and everywhere we are going to use the same technique, that is f alpha equal to f beta. So this is called contradiction method कि हम कुछ assume करते हैं, आगे proceed करते हैं. अगर result सही आया तो assumption was correct, result wrong आया तो assumption was wrong. Now I have a fun fact for you. Using the same concept that we have used here, let me say कि I assume 2 equal to 3. Let me assume I have to prove 2 equal to 3. तो let me assume 2 equal to 3. Contradiction method यूज कर रहा हूं मैं. तो अगर 2 equal to 3 है तो 3 equal to 2 भी होगा. Now if I add these, 2 plus 3 is 5, 3 plus 2 is 5, which is true. The result is true, and so our assumption was also true, and so I can say that 2 is equal to 3. This is our contradiction method जो हमने यहाँ यूज किया है to find 1 1 many 1. Now some of the students say, sir ऐसे तो मैं कोई भी नंबर इक्वल प्रूव कर सकता हूँ. Obviously you can, but they are not exactly equal, and so there is something wrong. So that is your homework. You have to identify कि इसमें क्या wrong है. हमें कुछ मानना था, हमने माना, आगे सॉल्व किया, रिजल्ट सही आया तो assumption सही था, रिजल्ट wrong आया, assumption wrong था. That is what contradiction method. So that's what I did here. Now you have to think about it and write in the comment कि where is the problem. So I'm going to solve more questions and we'll keep on solving more and more questions. Okay, so now we are going to solve some more. Let's say y equal to x plus 1 upon 2x minus 3. Now try to solve this question and let me know and tell me whether the function is 1 1 or many 1. I am going to solve this. F alpha will be alpha plus 1 upon 2 alpha minus 3. F beta will be beta plus 1 upon 2 beta minus 3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा दिस. -3 कैंसिल हो गया. 2 अल्फा बीटा कैंसिल. We get -5 alpha equal to -3 beta. -3 alpha and 2 alpha. This is 2 alpha beta plus 2 alpha -3 beta. -3 beta gives you -5 beta. So alpha equals to beta. Now think of it कि मुझे कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है. बिकॉज जब मैंने यहाँ 3 लिखा था आई कुड नॉट फाइंड अल्फा इक्वल टू बीटा. मुझे अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं दिखा. तो आई न्यू कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिकॉज अल्फा इक्वल टू बीटा तो आना ही है. तो गलती पता चल गई. अल्फा इक्वल टू बीटा इज द ओनली सोल्यूशन. तो आंसर इज 1 1 फंक्शन. सेकेंड क्वेश्चन लेट्स सॉल्व. y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 upon 2x square minus 3. 2x square plus 3 upon 2x square minus 3. तो f alpha will be 2 alpha square plus 3, 2 alpha square minus 3, 2 beta square plus 3, 2 beta square minus 3.
solve on your own, then it will be actually useful. तब आपको पता चलेगा कि what is the difference of JEE and board. आपको क्या करना आता है और आपको actually क्या करना चाहिए. Pause the video, try to solve this question. Not as easy as you think. I am going to do this anyways. So usual idea is कि cross multiply करो. No. बेसिक मैथ्स के वीडियो में मैंने आपको बताया है whenever, wherever you see anything of the form a plus b upon a minus b, a plus b upon a minus b, a plus b upon a minus b, what do? We use componendo dividendo. componendo dividendo नहीं पता, बेसिक मैथ्स वाला वीडियो देखिए ना. तो a plus b will be 4 alpha square, a minus b will be 6, a plus b is 4 beta square, a minus b is 6, alpha square equal to beta square giving me alpha equal to plus minus b. देखो कितने आसानी से आ गया. And so this is a many one function. क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आएगा, but this is faster method. Let's say y equals to ln x. y equal to ln x 1 1 है या many one. So let's do this. Idea is कि f alpha will be ln alpha equal to ln beta, log हटाया alpha equal to beta, that is the only solution. So function is 1 1 function. So that is one way of solving, आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है वो 1 1 है या मेनी 1 है. पहला मेथड था ग्राफ का, जो कि कम यूज आता है क्योंकि 1 1 मेनी 1 के क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो इट विल नॉट बी दैट सिंपल फंक्शन कि आप उसको ग्राफ बनाएं. तो ये एनालिटिकल मेथड इज एक्चुअली वेरी यूजफुल. फिर देन वी हैव वन मोर मेथड एंड दैट इज कॉल्ड अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेल्स यू कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और मोनोटोनिक है तो 1 1 होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक तो पक्का 1 1 होगा, बाकी के बारे में नहीं बोल सकते. सो कॉन्टिन्यूअस और मोनोटोनिक कैसे पता करेंगे? कॉन्टिन्यूटी सिखाया जाएगा 12th में. मोनोटोनिसिटी आपको फिजिक्स में सिखाया गया है कि कोई फंक्शन का dy by dx अगर पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, dy by dx नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है. तो फंक्शन का dy by dx ऑलवेज पॉजिटिव है तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, मतलब 1 1 हुआ. अगर ऊपर ही चलता जाएगा ग्राफ तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक से ज्यादा बार कट नहीं कर पाएगा. और कोई फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है देन अगेन इट विल बी 1 1. सो आइडिया इज कि द नेक्स्ट मेथड इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कि फंक्शन 1 1 है तो और साथ में कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग है या कंटिन्यूअस एंड डिक्रीजिंग है, कंबाइंड वी कॉल कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक है, इट विल बी अ 1 1 फंक्शन. ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा और कंटिन्यूअस होगा तो दैट विल बी अ 1 1 फंक्शन. तो कई क्वेश्चंस में दिस थिंग बिकम वेरी डिफिकल्ट, सो वहां पे हम उसका यूज कर लेते हैं. एक और एग्जांपल करते हैं. y इक्वल टू e पावर x plus e power minus x upon e power x minus e power minus x. What do we do here? What is it that we can do? So idea is very simple. F alpha equal to f beta upon, that is f alpha equal to f beta now what? You can cross multiply or you can use componendo dividendo because we have a plus b upon a minus b. So again we use a plus b upon a minus b. What is a plus b? What is a minus b? What is a plus b? What is a minus b? 2 cancel. e power 2 alpha is e power 2 beta, मतलब 2 alpha equal to 2 beta, मतलब alpha equal to beta, which is the only solution, and so it is a 1 1 function.
मतलब ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है जब ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस गिवन हो, जब ऐसा गिवन हो। log x तो सिंपल है, हमने अभी वीडियो में देखा भी, log का ग्राफ तो हमें पता है। You see that every horizontal line will intersect the curve at maximum one point, so it is a one-one function. डायग्राम से भी मिल जाएगा और एनालिटिकल भी मिल जाएगा। f alpha equal to f beta जो वाला मेथड है। So these are some questions, खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे questions we are going to solve for one and many one. Okay, so now we have these three more questions. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब क्या है? एक्स, एक्चुअली नो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, ये पहले ही बता चुका हूं मैं, एक्स प्लस मॉड एक्स है। नाउ व्हाट वी कैन डू, ईदर वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा, और वी कैन रिमूव द मॉड, और वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। सो लेट्स डू सम और द अदर वे। So one idea is कि if x is greater than equal to 0, तो number itself हो जाएगा mod, so x plus x will be 2x, और x अगर less than 0 है then negative का mod, negative of the number minus x plus x will be 0. If I draw this, what do I get? Less than 0 के लिए function is 0, मतलब this whole line, and for greater than equal to 0 it is 2x. 2x का ग्राफ बनाना आपको आता है। Now what do you see this is? This is 1 1 or many 1. तो every vertical line should intersect the curve at maximum 1 point for 1 1. ये सब तो 1 1 है, बट ये एक लाइन है जो कि ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट किया, एंड सो इट इज अ मेनी टू वन फंक्शन। तो देखो सिंपल सा फंक्शन था, इसने ग्राफ ड्रॉ किया और काम बहुत आसान हो गया। ग्राफ का जितना प्रैक्टिस होगा आपका काम उतना आसान होता जाएगा। 2 mod x minus x greater than equal to 0 and x less than 0. Pause the video and try the question in the very same way. I am going to solve. x पॉजिटिव है तो नंबर itself 2x minus x is x. नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ द नंबर -2x minus x minus 2. ड्रॉ करते, 0 के बाद है x minus 2 विच इज बेसिकली अ लाइन। x को 0 किया तो वैल्यू -2 आया, और y और x को 1 किया तो वैल्यू -1 आया, मतलब दिस इज द लाइन। लेफ्ट साइड में ऐसा है, x को 0 किया तो वैल्यू -2 आया, x को -1 किया तो वैल्यू +1 आया, -3 into -1, 3 - 2 1, that is this. What do you see? 1 1 या many 1? Actually many 1, because there is at least one line, वैसे infinite lines है which are intersecting the curve at more than 1 point. Next question is very nice question. Y equal to lambda x plus sin x. अब ये 1 1 होगा या many 1 होगा, that we need to find, and this is where you cannot use f alpha equal to f beta, because f alpha equal to f beta will give you this. Now you cannot solve these kind of equations which are mixed form. Mixed form मतलब purely algebraic हो चलेगा, purely trigonometrical हो चलेगा, but combination actually doesn't work very nice. So we should not focus on that. So there is another method that I told you about, and that is AOD, application of derivative. क्या करते थे उसमें? डिफरेंशिएट करते थे। dy by dx comes out to be lambda plus cos x. अब ये थ्रू आउट पॉजिटिव होगा तो थ्रू आउट फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, 1 1 होगा। ये हमेशा नेगेटिव होगा तो फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होगा, तो अगेन 1 1 होगा। बट ऐसा नहीं हुआ तो 1 1 की जगह मेनी 1 हो जाएगा, ऐसा हमारे दिमाग में। बट लैम्डा का वैल्यू पे डिपेंडेंट है सब कुछ। तो इफ आई से इज ग्रेटर देन 0 for all x belong to R, this implies that y is increasing function, and so it is 1 1. Continuous तो है, ये सब आपको बाद में पता चलेगा।
If it is less than 0 for all x belong to R, this imply that y dash negative मतलब y is decreasing. y decreasing है, still it is 1 1. देखना, कोई फंक्शन अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो भी एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन विल कट एट मैक्सिमम 1 पॉइंट. ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो भी एनी लाइन हॉरिजॉन्टल विल कट एट मैक्सिमम 1 पॉइंट. अदरवाइज इट विल बी many one. So how do we make sure that कि lambda plus cos x is greater than 0 for all x belong to 1? ये वाले केस की बात कर रहे हैं. Let me show you. We have to find lambda, so let's separate lambda from everything else. So lambda has to be greater than minus cos x. lambda अगर minus cos x से बड़ा हुआ तो ये हमेशा ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन 1 1 होगा. Now how do we make sure what should be the value of lambda so that it is always greater than minus cos x? Equality also holds, but वो बात की बात है. So idea is, अगर मुझे लैम्डा को माइनस कॉस एक्स से बड़ा रखना है, आई हैव टू कीप लैम्डा ग्रेटर देन माइनस कॉस एक्स. बट माइनस कॉस एक्स वैरीज, तो माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की हर वैल्यू के लिए चेंज होता रहेगा. सो व्हाट आई डू इज आई विल टेक लैम्डा ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस कॉस एक्स. अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस कॉस एक्स से बड़ा कर दिया, नाउ व्हाट एवर इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स वी डोंट केयर. सो माइनस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है. कॉस का वैल्यू -17, माइनस कॉस एक्स का वैल्यू भी -17, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है. अगर मैं इसको 1 से ज्यादा रख देता हूं, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, y इंक्रीजिंग, सो फंक्शन विल बी 1 1. एंड इन दिस केस इफ आई सी कि लैम्डा प्लस कॉस एक्स should be less than 0, lambda less than minus cos x. तो lambda को अगर किसी फंक्शन से बड़ा करना है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कर दो, और अगर किसी फंक्शन से छोटा रखना है तो उसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा कर दो. तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस कॉस एक्स का? -1. तो लैम्डा का वैल्यू greater than equal to 1 हो या less than equal to -1, the function will be 1 1. Let me add inequality also, जो आपको बाद में समझ में आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में. And for lambda belongs to -1 to 1, it will be otherwise वाला केस and that will be many one. काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि लैम्डा का वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में हुआ तो मेनी 1, नहीं तो 1 1. तो इफ आई से 2x प्लस साइन एक्स, 2x प्लस साइन एक्स विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 है. तो एज सिंपल एज दैट. इसमें साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो या फिर यहाँ प्लस हो या माइनस हो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. एवरी टाइम वी गेट द सेम आइडिया. तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आता रहता है, बट है बहुत ही सिंपल सा आइडिया कि dy/dx ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए या ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए, और कंटिन्यूअस तो फंक्शन इज बेसिकली 1. वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन. द आइडिया इज कि ये क्वेश्चन में दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन. दिस इज अ 1 1 फंक्शन. अब 1 1 फंक्शन है तो वी कैन नॉट यूज हियर एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा, क्योंकि मिक्स टाइप के एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, अलजेब्राइक भी है, तो बहुत टिपिकल हो जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नेक्स्ट मेथड, एंड दैट इज वेयर वी यूज dy/dx. डेरिवेटिव को y डैश भी बोलते हैं. लेट्स यूज dy/dx. डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² प्लस 6x प्लस 4 प्लस b cos x माइनस c sin x. या तो ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर. कंटिन्यूअस तो है, वो मुझे पता है, आपको भी बाद में पता चल जाएगा. सो ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है. इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा दैट यू हैव टू थिंक, या इसका रेंज क्या होगा. फाइंड मी रेंज ऑफ दिस.
you know the range of quadratic is minus d by 4a to infinity. D is b square minus 4ac divided by 4a, that comes out to be 1. So this comes out to be 1 to infinity, and this is minus root b square plus c square से plus root b square plus c square. ये तो पक्का 1 से ज़्यादा होगा, और इसमें क्या हम मैक्सिमम वैल्यू इसका ले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, सो दैट इट स्टिल रिमेन पॉजिटिव. तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो ये -1 to 1 हो जाएगा. अब अगर ऐड करोगे तो पक्की बात है कि ये ऐड करने के बाद भी पॉजिटिव ही आएगा. वॉट एवर वैल्यू ऑफ एक्स वी टेक, द सम ऑफ दीज टू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. But if we take b square plus c square का value suppose 2, so this will be minus root 2 से plus root 2. Then it is possible for some value of x that 1 and minus root 2 add करके negative आ रहा है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, because it should be positive for all x और negative for all x. तो अगर हमेशा पॉजिटिव रखना है तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है 1 से इन्फिनिटी तक ना. इफ वी टेक b square plus c square as 1, so this will be -1 to 1, and then it is always positive, and so it is 1 1. So I can say b square plus c square का maximum value we can take is 1. 1 से ज़्यादा लोगे तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आएगा. Always negative आए, that is also okay. Always positive आए, that is also okay. But some positive, some negative will not do. तो अगर b square plus c square का maximum value आप 1 ले सकते हो, तो this will be -1 to 1. If we add in this, we will get positive. Now, before finishing this all up, the idea is number of 1 functions कितने होते हैं. Number of elements in a set was called cardinal number, that was NA. Number of subsets, number of subsets will be 2 power n. Number of subset was 2 power n. Number of functions from A to B was B power A. Now number of 1 function is BPA. वैसे तो NPM होता है, बट NPM में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर n कौन सा है m कौन सा है. भाई ABCD में पहले m आता है बाद में n आता है, तो पहले वाले में m होंगे दूसरे वाले में n होंगे, तो यू कैन से NPM, या इसे याद कर लो BPA. B में जितने एलिमेंट है P, A में जितने एलिमेंट है, व्हाट इज दिस P स्टैंड्स फॉर, दिस इज परमुटेशन NPR वाला है P. कैसे होता है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. सपोज वी हैव A1, A2, A3 up to AM. Then we have B1, B2, B3 up to BM. अगर 1 फंक्शन की बात करें, this A1 can be connected in n ways. n में से कहीं भी जा सकते हैं. This A2 is having only n-1 option. It cannot go to B2 because B2 is already taken. It is 1 function, remember. तो मान लो ये चला गया यहाँ. A3 के लिए now we have only n-2 option and it goes on, और लास्ट के लिए क्या आएगा n-m plus 1, and this is the value of NPM, that is the number of 1 functions from A to B. और बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे, there will be many 1 function. बाकी कितने बचे, total -1 1, n power m B power A, n power m minus NPM will be the number of many 1 function. So this was your 1 1 and many 1 function. Thank you.